Hello party people, in today's video we are gonna learn how to make embroidered rakhis. So let's get started without wasting any time. So we'll be having two designs and we'll be having like four colors here and some other material that I'm gonna show you with time. So first thing, we'll start with this pink color. We're gonna take like around 40 centimeter thread. Then we're gonna cut it. Okay, so in one thread there are like 6 little strands, as you can see. So what we are gonna do, we are gonna separate one strand here and we are gonna hold that 5 with the other hand and we are gonna pull that 1 with other hand. Sorry. So now we have this single thread. So now we're gonna insert it in our needle and we're gonna take both ends at the bottom. So we are gonna make it double, you can see, and I'm gonna give it a super fine knot at the end. You can give 2 knots probably, so it won't outcome to fabric. I'm going to cut extra thread and we'll be doing satin stitch here. So I'm just coming up from the outline of the flower outline. I'm going to center. Okay, again I'm coming out from the nearby of that the first stitch that I took. So this is satin stitch. I'm just filling the gap with the stitch. Okay, so one petal is done. Time for next one. Again same procedure. जो एरिया है उसका we have to fill the area. जो आउटलाइन हमने क्रिएट किया है पेन से ड्रॉ किया है. So I have taken 3 stitches in one petal. If you want to take 4 stitches, you can do that too. Also depends on how thick the flower petals you want. So I think 3 are enough to give it subtle look. But also it depends on you how much thick you want. So I'm just adding one or where I think that's less. So you can also do that after finishing your one round. So we will add one here also. And flower is ready, as you can see here. Okay, so next step we'll be adding beads to flower. So these are golden beads. So I'm just gonna come through the center of the flower, you can see, and I'm gonna take one bead, and I'm just gonna go back to the center of the flower again. Let's see it. You can add 1 or 2 beads if you want to, but I like one simple bead, so I'm just sticking to one.
and I'm giving the knot bottom from the back side, and you can cut the extra thread, and that's our flower. Now we are gonna take this dark green shade. We are going to follow same procedure as we did for the pink one. We are again going to take like 40 centimeter of something thread. Again I am taking one strand out of 6. We are doing the same thing that we did for petal, but this time the leaves will be pointy. So what we are gonna do, we're gonna come through the point, see this is the first step. Now इसका जो पास वाला होल है हम वहां से ऊपर आएंगे, एकदम सेम होल से नहीं आएंगे, उसकी थोड़ा पीछे से आएंगे, तो जो पॉइंट वाला टेक्सचर है वो क्रिएट होगा यहाँ पे। That's it. The leaf is done. I'll again show the another one. लास्ट पॉइंट से ऊपर आए, फिर लाइक एंड में गए, फिर उसके जहां से हम फर्स्ट आए थे उसके पास से, बट नीचे से ऊपर आएंगे, लाइक नीचे से मतलब उसके पीछे से यहाँ, फिर सेम होल में जाएंगे बैक में, फिर उसके थोड़ा पीछे से ऊपर आएंगे, फिर सेम होल में जाएंगे, सेम प्रोसीजर इस साइड भी फॉलो होगा, उसके पीछे से आएंगे, सेम होल में जाएंगे। Gonna give a tight knot at the bottom, at the back side. मैंने लाइट ग्रीन शेड लिया है, तो यहाँ पे जो ब्रांचेस है स्मॉल वाली, तो हम वो रनिंग स्टिच यूज करके करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दैट। तो सिंपल है, यहाँ पे हम रनिंग स्टिच करेंगे। आप कोई भी पॉइंट से ऊपर आ सकते हो, आपको बस ये सीधा लाइन ऐड करना है, और फिर ये पॉइंट से फिर जो फर्स्ट पॉइंट था वहां पे ज्वाइन करना है। अगेन इसमें भी सेम प्रोसीजर। ओके, फॉर नाउ दिस वन ये थोड़ा कर्वी है, तो हम क्या करेंगे, हम एंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, और जहां पे दो लीव्स है, ब्रांचेस है, वहां पे हम एंड करेंगे, फिर जो आगे वाला था उससे ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे ये बैक स्टिच यूज की हमने छोटी, तो ये हमारा कर्व शेप बन गया। तो अभी ये सेम प्रोसीजर होगा, यहाँ से ऊपर आएंगे और सेंटर में ज्वाइन करेंगे। दैट्स ऑल। अगर आपको एक दो और ऐड करने हो यहाँ पे, तो आप रैंडमली भी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप डिजाइन में ही बना के रखो। नॉर्मल अंदाजे से आपको नीडल और थ्रेड के साथ काम करना है।
दैट्स ऑल, हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वाला सेम इधर से भी करना है तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आपको इसको और ऊपर लेके जाना है तो यू कैन डू दैट टू। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जिससे हमने इस साइड किया था। थोड़ा ऊपर आया, बैक स्टिच यूज किया और एक और ब्रांच या छोटा लीफ बना दिया। सो दैट्स ऑल। अभी बैक में हम नॉट करेंगे और दूसरा डिजाइन स्टार्ट करते हैं। हम दूसरे डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं। सेम थिंग, मैंने पिंक थ्रेड लिया है, उसको सिंगल करके मैंने डबल करके बॉटम में एट द एंड मैंने नॉट दिया। ओके, सो जैसे हमने ये फ्लावर किया, हम सेम यही तीनों फ्लावर वैसे ही करने वाले। सो हम आउटर साइड से स्टार्ट करेंगे, फिर सेंटर में जाएंगे, उससे पास से ऊपर आएंगे, फिर सेंटर में जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया। ये मैंने 3 बार किया। फिर नेक्स्ट पेटल, आपको एकदम सारे सेंटर में एकदम सब एक ही होल में नहीं डालने, थोड़ा गैप रखना है क्योंकि हमें उसमें बीड भी लगाना है। तो थोड़ा सेंटर से लाइक 1-2 होल छोड़ के अलग अलग पेटल्स करना, सेंटर में अपने आप जगह बनी रहे। ये देखिए, आपको दिखेगी यहाँ पे जगह। तो मैं एकदम एक दूसरे के पास नहीं ले रहा, थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं मैं इन बिटवीन। ओके, मैंने हर पेटल में 3 बार थ्रेड लिया है। जैसे कि मैंने पहले बोला, आप 4 बार भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन कि आपको कितना थिक चाहिए। ओके, तो नाउ आई फील कि इस साइड में थोड़ा कम है, डिस्टेंस लग रहा है, तो आई एम जस्ट गोना ऐड 1 पेटल, 1 थ्रेड देयर। यहाँ पे भी 1-2 ऐड कर देता हूँ, थोड़ा मोटा लगे। या दैट्स ऑल, हमारा एक फ्लावर बन गया। तो सेम प्रोसीजर से हम ये तीनों फ्लावर बनाएंगे। ओके ओके, सो आई एम डन विथ माई 3 फ्लावर्स, बट मैंने धागा कट नहीं किया है बिकॉज हम सेंटर में बीड्स लगाएंगे। सो मैं सेंटर से ऊपर आया, मैंने एक बीड लिया नीडल में और फिर मैं सेंटर में फिर से वापस गया। ये हमारा बीड लग गया एक फ्लावर को, तीनों में लगाना है सेम प्रोसीजर। पहले आपको नीचे से ऊपर आना है और उसके बाद बीड लेना है। ओके, नहीं तो क्या होगा, बीड लोगे और फिर नीचे से ऊपर आओगे तो बीड बैक साइड में ही लग जाएगा। तो ये हमारे तीनों बीड्स लग गए यहाँ पे। अभी पीछे नॉट मार देंगे, 2 नॉट देंगे टाइट वाले और थ्रेड को कट करेंगे। तो हमारे फ्लावर्स हो गए। अभी हम लीफ करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे इसमें किया था।
satin स्टिच है ये। आप लीफ पॉइंटी भी बना सकते हो या फिर सर्कुलर फॉर्म में बना सकते हो, जैसे कि हमने ये फ्लावर की पेटल्स जो है सर्कुलर फॉर्म में। तो ऐसे नहीं कि आपको लीफ सिर्फ पॉइंटी फॉर्म में ही बनाने। ये मेरा लीफ बन गया यहाँ पे, और जो साइड के दो है वो बस मैं सिंपल रनिंग स्टिच करूंगा, वहां पे सिंपल स्टिच दूंगा। ये हो गया लीफ। तो सेम प्रोसीजर हमें इधर भी फॉलो करना है तीनों के लिए। सेम ये था। तो ये हमारी डिजाइन कंप्लीट हो गई यहाँ पे। नाउ हम बैक में नॉट कर देंगे। अगेन 2 नॉट्स करने हैं आपको। And yeah, that's all. Our flowers are ready. I hope you guys understand like what we did. We mostly use satin stitch, back stitch, and running stitch. We barely use back stitch in 1 or like 2 stitches, but the rest of all is only like satin stitch and running stitch.